Good morning, all of you. This is your IP teacher, Tushar Agarwal. Now, friends, we are discussing Python for class 11. Now, we have completed our work of control flow of statements, in which we come to know that there are two loops, for and while loop. There is no do while loop in Python. So only exit control loops are there in Python. We have studied various programming, we have studied various items. Now it's time for the next data type to be studied, is known as list in Python. If you remember in the introduction, I have introduced four things: list, tuples, sets and dictionaries. Now in it we are going for the list in Python. Now first of all, we must know what is a list. Now list is a collection of items and each item has its own index value. Means there are two things in the list. It is items and index. Now friends, it is very much important to remember what do you mean by index and what do you mean by a list. Now index of first item is 0 and the last item is n minus 1. Suppose you are having n numbers of items in a list. This means that the index number starts from 0 till n minus 1, as you can see here. These are called the index and these are the values. Now index can be positive or negative. Index can be positive or negative. Remember one thing, when we are going for the positive index, it will start from 0. And if we are going from negative index, we are going to have minus 1. Now there are two things we must remember in that. First is elements or the items, and the second one is the index. Now, how would you create a list? As I already told you, lists are enclosed within the square brackets, in the big square brackets, like this. Now friends, from this we can also conclude that list is a heterogeneous. Heterogeneous means there are types of data that can vary from one data type to another data type. For example, if I will take list 1, in this English is having string, Hindi is having string as quotes are there. Now 1997 and 2000 are the values that reside within the numeric part. In list 2 all the numerics are there, in list 3 all the strings are there. Now, how to access items from a list? Now friends, here index plays an important position. You must take care in mind while doing this. You must have index positions in your mind. For example, list 359 is there. It means it is 0, it is 1, it is 2. 3 index means 0, 3 is at index 0, 5 is at index 1 and 9 is index 2. So here in big braces I will write 0. This means this is my index number and I want to get the value of access the value of list at 0 index. So it is 3, at 1 it is 5, at 2 it is 9. Now if I will go for negative indexing, now it is minus 1, minus 2, minus 3. So minus 1 is 9. Now it will start from the reverse. Minus 2 is 5, minus 3 is 3. So we must remember how to take. Now list can be accessed using its index positions. Now it is iterating through the list, means you are having a list and you are again just going through the cycle or loop. There is a method you can use for that. Now for that we cannot operate directly on the list. First what will we do? We will take the length of the list. Means length of the list here means the number of elements. I am not talking about the index. I am talking about the number of elements. From 0, it will start from 0 to length of the list. It means 1, 2, 3. 0, 2, 3. So it means 0 is included, 1 is included and 2 is included. So according to index value, the values will be printed. Now list of 0, list of 1, list of 2, list of 3. Slicing of a list. It is a very important topic as how to do slicing. Now we have done a single part. Now in list I have done I and D, I, A, India. Now I have to take slicing. I have to take only these three. So what I will write 0, 2, 3. Remember these are our kya hai ye? What are these? These are our index numbers. So and the last index number is neglected. Means it will not be taken. Last index number is not taken. So it is 0,
कॉलन मीन्स 2, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं 0 से 3, so it means 0 to 3. So 0, 1 and 2 are included, whereas 3 is excluded. It means 0, 1, 2 are included and 3 is excluded. Now next thing is print 3 colon this. If I have not provided a value on either of the side, means if I will not provide here, I will not provide here, it means from the starting till the point, neglecting the last point, we get all values. Now here I have get the starting value and the last value we are not having, so it means 3 to 0. Now if we are having no value here, it means starting from the third index till the last index, we have to take all values. It means 1, 2, 3. Sorry, 0, 1, 2, 3. Now the answer will be I and A. अगर इसके बाद भी कुछ होता, we will take the same. Now this is an important task. List, here is no value, here is no value, only columns are there. Now column means that all the values are taken. So answer will be I and D, I, A, my favorite, my loving, India. So columns are used to slice. Now first, slice means. Okay, now slicing means, this is questions I used to put in the papers. I am telling you, I am just giving you the questions. Okay, so what do you mean by slicing? Slicing means making subparts from a list of elements, extracting the elements from a list, right? We can tell this in both things. Now updating the list means we have to update the values. I have given some values, now I want to change them. I have given some values, now I want to change them, so I will update the values. Now this can be done as a single list or a multiple list, giving the slice on the left hand side of the assignment operator. Now consider this list: English, Hindi, 97 2000, the example which we have taken in the previous one. I have printed the list 2, the list 2 is 1997. Now what I am going to do, I am updating the values. I am writing list index 2 to 3 means index 2 से लेकर index 3 तक मेरी values को change कर दिया जाए. So it will be 2001 and 2002. So list, it means at 2 will be 2001, at 3 it will be 2003. So now it has replaced these values with 2001 and 2002. Now whenever I will print the values of list 2 and list 3, just see it will print 2001 and 2002. So this means here I want to explain two terms. First one is mutable, M-U-T-U-A-B-L-E, mutable and immutable. Now mutable means that we can modify the data, we can modify the list, we can modify a particular data structure even after its creation. That means the elements of a list are mutable. Lists are mutable in nature. Now immutable means that it is not possible to modify once created. Therefore list is mutable, as we can modify the elements. Now there is a next method called append. Append means adding to the last. Friends, ये याद रखिएगा, जहां भी हम append यूज करेंगे अब Python के अंदर, इसका मतलब लास्ट में जोड़ देना. Now I have seen that there is a list of two numbers, example 1 and 2, and I want to append, right? So I want list dot append 3 and print it, so 3 will be added. It means whatever the value I want to give, I will write list name dot append function in braces the value which I want to print and just print it. So it will be 1, 2 and 3. The value is automatically added to the last. The value is automatically added to the last, right? Last में value अपने आप से edit हो जाएगी, add हो जाएगी. Now note, extend method can be used to add multiple items at a single time. Now if we want to just with append we can add one by one. With extend we can add so many values at a single time. Now if I will write list dot extend 3, 4, so the values 3, 4 will be there. In this way we can just make our list mutable. We can make various changes to a list. Now the next thing is we have studied append function and extend. Extend में हमने क्या किया? We can take more than one values. In append we can add one by one, but similarity is both the values or both the extend function and append function insert the values at the very last.
Now next, adding to list, we can just add to list. Now adding to list does not mean, this plus does not mean that you can provide addition on them. This will concatenate. Now remember my words, concatenate. Concatenate means we can join two lists. Now two lists are merged in this way, right? List and list 2. In list there are elements 1 and 2. In list 2 there are elements 3 and 4. So friends, you must keep in mind while doing these things in the list. Now let me show you some practicals about the list. We will go our, now I have opened the Thonny. We will do some programming now. Now first is creating a list. Now friends, take in consideration, I will use list 1 is equal to big braces. You have to take big braces here. Big braces 1, comma 2, comma 3, and this. Now I'm going to print it for you. Print list 1. Now my answer will be, I will check. First of all, I will save my program. What will give the name? The first list. Okay, it is going on. So friends, note down about this separators. We will use separators, different. I will tell you how to use different separators at different points. So I will save it. Yes, I will save with the name li. So my answer will be 1, 2, 3. Now I will do one thing. I will just try to write separator is equal to, then you will see what will happen. It will get an error, right? No, nothing will be done. As I try to insert the separator, if I will write end, then let us see. Look, that will be there. Now how to just, I will show you add to list. Now addition of two list means it is their concatenation. I will write 3, 4, 5. So now I will print list 1 plus list 2, and I will just remove this. Now let us see what answer we will get. Look, we will get these answers. And also the common terms, this is not mathematics, this is computers. Also you can see this list 1 and list 2 are added here. Concatenated means it is added at the end. Now my question is, to this list 1 I want to add an element. Remember my word, I want to add an element called 3. So I will write print, I will not write print, z is equal to list 1, the name of the list, dot append. You have to write append, then I will write 4, then print list 1. Now remember the answer, it is 1, 2, 3, 4. Now I will use the extend function here. Now extend function, if I will use more than one item, if I will use more than one item, I will say 5, then we will see we will get or not. Look, because we can take only one argument, so append is used only one item at a time, right? Now after append I will use z के बाद में y use कर लेता हूँ, is equal to list 1 dot extend. Now 4 I will use this sign because multiples are there, 4, 5, 6. Now let me check. Look, 1, 2, 3, 4 I will add append. So it means all or many items can be added. So this is the part of the list, how you can perform various functions. Look at the separators, comma, list is separated by the commas, list 1 and list 2 are taken. I have shown you concatenation, I have shown you
extend. Now we are going to slicing. हाय गाइस, आज हम लोग लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. अ लिस्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हम लोग लिस्ट कहते हैं. लिस्ट आर वेरी सिमिलर टू एरे बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस. एन एरे कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट वेयर एज अ लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट. तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है. एरे भी तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. एरे में आप सिर्फ एक टाइप ऑफ डेटा रख सकते हैं. जैसे कि नंबर है, इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर ही रहेगा. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही रहेगा. स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग ही रहेगा. लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है. लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट रख सकते हैं एक लिस्ट में. यानी कि एक लिस्ट में इंटीजर दो एलिमेंट हो गया, फिर तीसरा एलिमेंट आप फ्लोट रख सकते हैं, फिर चौथा एलिमेंट आप स्ट्रिंग रख सकते हैं. ऐसा आप कर सकते हैं. सो ये एक बड़ा डिफरेंस है लिस्ट और एरे में. लिस्ट आर म्यूटेबल सो वी कैन मॉडिफाई इट्स एलिमेंट. मैंने आपको बताया था म्यूटेबल ऑब्जेक्ट और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो लिस्ट जो होता है हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. अ लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी मॉडिफाइड. लिस्ट आर डायनेमिक विच मीन्स साइज इज नॉट फिक्स्ड. लिस्ट डायनेमिक होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका साइज फिक्स्ड नहीं है. इसमें आप जितनी मर्जी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख सकते हैं. लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि मैंने ए इक्वल लिखा. ए मेरा एक लिस्ट है, या फिर कह सकते हैं लिस्ट का नाम है. देन मैंने इसमें एलिमेंट आप देखेंगे मैंने 10, 20, -50, फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया 21.3, फिर एक स्ट्रिंग आ गया गिगीसोस. तो आप देखेंगे कि ये हमारा एक लिस्ट है. वाई? बिकॉज इसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं और साथ में जो एलिमेंट्स वो डिफरेंट डेटा टाइप के हैं. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट डेटा टाइप ही होना चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं. अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट थी कि मेरा 3 इंटीजर हो, एक फ्लॉट हो और एक स्ट्रिंग हो, तो मैंने रखा. अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि एक ऐसे लिस्ट की जिसमें सिर्फ इंटीजर हो, तो मैं इंटीजर भी रख सकता हूँ. अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे लिस्ट की जिसमें सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो वह भी बनाया जा सकता है. अगर कोई आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि सिर्फ वर्ड का यानी कि स्ट्रिंग का लिस्ट हो, तो वैसा भी बनाया जा सकता है. सो उम्मीद है कि लिस्ट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी. आप लिस्ट और एरे में डिफ्रेंशिएट करना भी यहाँ से सीख गए होंगे. अब बात करते हैं कि लिस्ट को बनाया कैसे जाता है. सो क्रिएटिंग अ लिस्ट, सिंपल सा तरीका है. अ लिस्ट इज सिमिलर टू एन एरे दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और आइटम्स. लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है. दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे. सो ये जिस तरीके से आप एरे बनाते हैं उसी तरीके से आपका लिस्ट बनेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ आपको क्या करना है, लिस्ट का नाम लिखना है, इक्वल साइन देना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं. ये डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं. हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना है. फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल 10, -20, -50, -21.3, गिगीसोस. और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई लिस्ट बनाए तो उसमें डिफरेंट डेटा टाइप होना ही चाहिए. अगर आपको सिर्फ इंटीजर का लिस्ट चाहिए तो सिर्फ इंटीजर वाला भी आप लिस्ट बना सकते हैं. अगर आपको सिर्फ फ्लॉट का लिस्ट चाहिए तो सिर्फ फ्लॉट भी बनाया जा सकता है. और अगर सभी का मिक्स चाहिए इस तरीके से, तो इस तरीके का भी लिस्ट बनाया जा सकता है. इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी कभी कभी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने की, एक खाली लिस्ट, जिसमें मे भी हम लोग यूज़र से इनपुट लेना चाहेंगे या फिर किसी भी वजह से हमें एक खाली लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है. तो सिंपली आपको लिस्ट नेम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है. फॉर एग्जांपल ए इक्वल सिर्फ स्क्वायर ओपन एंड स्क्वायर क्लोज करके इसको छोड़ देना. ये हमारा एम्प्टी लिस्ट हमें बनाकर देता है. अब बात करेंगे हम लोग इंडेक्स की. एन इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन नंबर ऑफ एन लिस्ट एलिमेंट. द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स एंड रिटर्न इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स उस एलिमेंट का पोजीशन नंबर आपको बताता है और ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और 0 से आगे बढ़ता जाता है. 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से. सो मान लीजिए कि ये हमारा एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 10, 20, -50, 21.3 और गिगीसोस. इसका अगर आपको इंडेक्स पता करना हो तो कैसे करेंगे, या फिर इसका इंडेक्स आपको जानना हो मैनुअली आप कैसे इसका इंडेक्स समझ सकते हैं. सो ये कुछ इस तरीके से होता है. पहला जो एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स पर, देन उसका नेक्स्ट वाला 1 पर, देन उसका नेक्स्ट वाला 2 पर, इस तरीके से 1 बढ़ता जाता है. और सभी का इंडेक्स इस तरीके से आप मैनुअली अपने दिमाग से अपनी सोच और समझ के अनुसार इस तरीके से हर एक एलिमेंट का इंडेक्स पता कर सकते हैं. इसको कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है. जो भी आपका लिस्ट का नाम है वह, यानी कि मेरे केस में ए है तो ए,
A0 इंडेक्स पर 10 एलिमेंट, A1 इंडेक्स पर 20 एलिमेंट, A2 इंडेक्स पर -50 एलिमेंट और A3 इंडेक्स पर 21.3 एंड A4 इंडेक्स पर गेकी सॉस। इसको नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका पोजीशन नंबर नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी आप निकाल सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। नीचे से -1, सबसे नीचे वाला जो रहता है वो -1 रहता है, देन उसके ऊपर आएंगे तो -2, उसके ऊपर -3, उसके ऊपर -4, उसके ऊपर -5। इसको कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है कि A-1 गेकी सॉस, A-2 इंडेक्स पर 21.3, A-3 इंडेक्स पर -50, A-4 इंडेक्स पर 20 और A-5 इंडेक्स पर 10। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जब पॉजिटिव इंडेक्स चलता है तो वह 0 से स्टार्ट होता है, और जब नेगेटिव इंडेक्स चलता है तो वह -1 से स्टार्ट होता है और नीचे से। नेगेटिव वाले में 0 नहीं है, इसलिए आपको 1 to 5 दिखाई देगा, लेकिन पॉजिटिव में देखेंगे तो आपको 0 to 4 ही दिखाई देगा। जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है उससे हमेशा एक कम रहता है पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव इंडेक्स। अब बात करते हैं इसको एक्सेस करने की, कि एक्सेस कैसे करना है। सो एक्सेसिंग लिस्ट्स एलिमेंट, यानी कि लिस्ट के एलिमेंट को कैसे आप एक्सेस करेंगे। सो मान लीजिए कि ये हमारा लिस्ट है 10, 20, -50, 21.3 गेकी सॉस। हम लोग जानते हैं कि ये कुछ इस तरीके से एलिमेंट क्रिएट करेगा और इनका अपना अपना पोजीशन नंबर होगा। तो इन पोजीशन नंबर की सहायता से हम लोग इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर मैं लिखूँ A0 तो मुझे 10 मिल जाएगा, अगर मैं लिखूँ A1 तो मुझे 20 मिल जाएगा, अगर मैं लिखूँ A2 तो मुझे -50 मिल जाएगा, अगर मैं लिखूँ A3 तो मुझे 21.3 मिल जाएगा, यानी A4 मुझे गेकी सॉस मिल जाएगा। सो अगर इसके एलिमेंट को, यानी कि इस पोजीशन नंबर के साथ इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको A यानी कि लिस्ट का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन नंबर को लिखना पड़ता है। अब यही मान लीजिए कि मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, तो A0 से मुझे सिर्फ उस एलिमेंट का एक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर उसको आपको डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर तो आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। सो प्रिंट A0 में जो भी है, तो 10 है तो 10 स्क्रीन पर दिखाई देगा। उस तरीके से प्रिंट A1 में जो भी है, यानी कि 20 तो 20 स्क्रीन पर दिखाई देगा। उस तरीके से A2, A3 और A4 तक आपको दिखाई देगा। आप चाहें तो नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करके भी इसको कर सकते हैं। A-1 गेकी सॉस, A-2 21.3, A-3 -50, A-4 20 और A-5 10 आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट को मॉडिफाई कैसे करेंगे या फिर उसको अपडेट कैसे करेंगे। मान लीजिए कि कहीं पर कोई एलिमेंट है जिसे मुझे चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो कैसे करेंगे। सो लिस्ट आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, सो वी कैन मॉडिफाई इट्स एलिमेंट जस्ट बिकॉज लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि इंटीजर एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सो ये हमारा एक लिस्ट है A = 10, 20, -50, 21.3 और गेकी सॉस, जिससे हमारा ये इंडेक्स पर क्रिएट होता है। मान लीजिए कि मुझे A1 की जगह जो अभी 20 है उसे मुझे 40 करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, A1 = 40 लिख दूंगा। यहाँ से 20 चला जाएगा और यहाँ 40 चला आएगा। सिंपल सा तरीका है मॉडिफाई करने का। आपको इंडेक्स नंबर के साथ उसको एक्सेस करना है, देन जो भी वैल्यू चाहिए उसमें असाइन कर दीजिए, वो अपडेट हो जाएगा या फिर मॉडिफाई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि लिस्ट इम्यूटेबल होता है या फिर म्यूटेबल होता है। आप कहेंगे कि म्यूटेबल होता है, तो पूछा जाएगा कि म्यूटेबल होता है, इसका मतलब क्या होता है। आपको कहना है कि म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है। सो अगर इस टॉपिक को अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से है कि जब आप ये लिखते हैं तो ये पूरा लिस्ट क्रिएट होता है, ठीक। यहाँ पर 10 है, 20 है, -50 है और 20.3 है और गेकी सॉस है, मान लीजिए है यहाँ पर लिखा हुआ। इसके लिए एक मेमोरी जनरेट होता है, मेमोरी एड्रेस जनरेट होता है। मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0, 1 इस तरीके से एक मेमोरी जनरेट हुआ। और इसमें ये वाला है, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो लिस्ट है हमारा, इसके लिए ये एड्रेस बना हुआ है, यानी कि इस एड्रेस पर ये पूरा रखा हुआ है। और ए क्या करता है, ए सिंपली इसको टैग करता है,
ए का और इस एड्रेस का कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये हमारा एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ये एड्रेस है। इस ए का कोई भी काम नहीं है, ये ए सिर्फ एज अ टैग काम कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के लिए। सो अब आप इस लिस्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं। आप कहते हैं कि A1 में जो पहले 20 था उसको मैंने 40 कर दिया। तो जब ऐसा कहा जाता है तो फिर से एक लिस्ट मान लीजिए इस तरीके से 10, 20, -50 और 21.3 और की सोर्स। अब 20 नहीं बल्कि 40 ऐसा बनता कब, जब ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता तब फिर से एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनता और इसका अपना कोई एड्रेस होता। जब भी आप मॉडिफाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट का एक नया एड्रेस बनता। पहले तो ये ऑब्जेक्ट बनता देन इस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस बनता, बट ये नहीं होता है जस्ट बिकॉज म्यूटेबल है लिस्ट, यानी कि इसी में आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ये इम्यूटेबल होता और ये मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, 20 को यहीं पर 40 करना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या होता, इम्यूटेबल होने की केस में इस तरीके से एक नया ऑब्जेक्ट बनता जिसका एक नया एड्रेस बनता और ए इसको टैग कर रहा होता। देन ये जो ए है अब इसको टैग ना करके इसको टैग करता, देन ये हमारा गार्बेज कलेक्टर उठा के लेके जाता। लेकिन ये सिनेरियो नहीं होता है। ये सिनेरियो होता है अगर लिस्ट इम्यूटेबल होता तब। जब लिस्ट म्यूटेबल होता है तब सिंपली इतना सा होता है कि एक लिस्ट बन जाता है, इसमें 10 है, 20 है, -50 है और 21.3 और की सोर्स है और यहाँ कुछ एड्रेस है और इसको ए टैग कर रहा है। जब आप मॉडिफाई करते हैं तो ये सिंपली इसी में 40 को अपडेट कर देता है। सो ये सिनेरियो होता है म्यूटेबल में, जो कि लिस्ट के केस में हो रहा है। यानी कि मॉडिफाई होने की वजह से, जस्ट बिकॉज आप मॉडिफाई कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जाता है, इसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया जाता है। ओके, सो उम्मीद है कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अगर आप पूछा जाएगा तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे इसको। अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, यहाँ तक जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, उसके बाद आगे हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिस्ट ए इक्वल, ये हमारे लिस्ट का नाम है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप एलिमेंट लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके लिस्ट बनाया जाता है। सो 10 लिखा, 20 लिखा, -50 और एक था हमारा क्या 21.3, एक और था हमारा जो कि था सिंगल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग जो कि था की सोर्स। इस तरीके से आप बना सकते हैं एक लिस्ट। एक एम्प्टी लिस्ट बनाना हो तो आप सिंपली ए इक्वल इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, तो ये आपका एक लिस्ट बन जाता है, एम्प्टी लिस्ट, खाली लिस्ट। अभी एक्सेस करने की बात करें, एम्प्टी लिस्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे तब। अभी इसको देखते हैं। अगर इसको एक्सेस करना हो तो सिंपली आप प्रिंट ए लिखेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आपको दिखा देगा। हम लोग इसको अगर रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सारे एलिमेंट यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर एक एक एलिमेंट आपको डिस्प्ले करना है तो आपको इंडेक्स नंबर के साथ इसको लिखना पड़ेगा। लाइक A0 में क्या है 10 है, तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। और इसको मैंने सेव नहीं किया है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया, अभी इसको हम लोग रन करेंगे तो हमें A0 पर 10 देखने को मिलेगा। उसी तरीके से इसको मैं कॉपी कर लूँ A1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, और यहाँ पर हम लोग इंडेक्स नंबर को बस चेंज करना है, यहाँ 1 कर देना है, यहाँ हम लोग कर देते हैं 2 और यहाँ कर देते हैं 3 और यहाँ कर देते हैं 4। तो हमें सभी एलिमेंट्स एक एक करके यहाँ पर दिखाई देंगे। सेव किया है मैंने। सेव करने के बाद मैंने इसको, ओके, हमारे यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट डिलीट हो गया है। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद जब इसको रन करेंगे आप तो हमें सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, 10, 20, -50, 21.3 और की सोर्स। आप इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। सो नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट होता है -1 से, हम लोग जानते हैं, तो -1, -2, -3 और हमारा -4 और एक लास्ट में -5 लिखना पड़ेगा। सो मैंने लिख दिया -5। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद जैसे आप इसको रन करेंगे आपको यहाँ पर सारे एलिमेंट्स दिखा देंगे, बट अपोजिट में, बिकॉज ये नीचे से -1 चूज़ करता है। ये वाला -1 है, ये -2, ये -3 और ये -4, ये -5। अब बात करते हैं इसको मॉडिफाई करने की। सो मॉडिफाई करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर चाहिए होता है। हम लोग अगर अभी देखें मॉडिफिकेशन से पहले, मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ A1 को। अगर मॉडिफिकेशन से पहले आप A1 एलिमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि A1 में क्या है।
सो A1 में है 20, अभी हम लोग इस 20 को करेंगे 40, तो हम लोग A1 में सिंपली असाइन कर देंगे 40। देन अब प्रिंट कीजिए आप A1 को, पहले जो कि 20 था अभी वह बन गया होगा 40। देखिए पहले ये 20 था, अभी बन गया है 40। इसके साथ आप एक और चीज़ देख सकते हैं, आप पूरे एलिमेंट को देखिए। मान लीजिए कि मॉडिफिकेशन से पहले A को अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो ये आपको पुराने एलिमेंट यानी कि 20 के साथ स्क्रीन पर दिखाएगा। देखिए इसमें 10 है, 20 है, -50 है, 21.3 है और ये किस वजह यानी कि 20 है यहाँ पर। अभी मॉडिफिकेशन के बाद अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट A सेव करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो एलिमेंट होगा वह 40 हो गया। मॉडिफिकेशन से पहले ये 20 था जो कि मॉडिफिकेशन के बाद 40 हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दोनों का एड्रेस, मॉडिफिकेशन के पहले उसका एड्रेस और मॉडिफिकेशन के बाद उसका एड्रेस सेम रहता है। सो हम लोग आईडी देखते हैं, ए का आईडी और सेम यहाँ पर भी आईडी देखेंगे, ए का आईडी। सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर देखिए जो एड्रेस मॉडिफिकेशन से पहले था वही एड्रेस मॉडिफिकेशन के बाद भी है। इससे ये प्रूफ होता है कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल है, यानी कि मॉडिफिकेशन होने से कोई भी नया एड्रेस जनरेट नहीं होता है, कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, बल्कि सेम ऑब्जेक्ट पर मॉडिफिकेशन किया जाता है और एड्रेस उसका वही बना हुआ रहता है। सो गाइज ये था हमारा लिस्ट को लेकर पहला वीडियो, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हम लोगों ने जाना कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं इंडिविजुअली, लिस्ट को कैसे मॉडिफाई करते हैं इंडिविजुअली, लिस्ट के इंडेक्स के बारे में जाना, और जाना कि लिस्ट म्यूटेबल होता है जिसकी वजह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और साथ में लिस्ट म्यूटेबल होने की वजह से मॉडिफाई होने पर कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, बल्कि उसी ऑब्जेक्ट पर वह मॉडिफाई होता है और इसका एड्रेस वही सेम बना हुआ रहता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे लिस्ट को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।